So good morning all. We are here in the syllabus of OOPS using C++. Today's topic is functions and arrays. Actually, we are going to complete the concept of function in this video, and for arrays we will see in next video. Now in C++, all of you know there is one main, और हम उस मेन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मेन फंक्शन. सो व्हाट इज फंक्शन इन टर्बो C++? So function in turbo C++ are blocks of code that perform specific tasks. This is general definition. They allow you to break down a program into smaller manageable parts. Functions can be reused and called from different parts of the program. And in simple words, it is subprogram of C++ whose name is other than main. So if you consider main as a different function, then what are the other functions in C++? These are nothing but the subprograms of C++ whose name is other than main. जिनका नाम main नहीं है लेकिन वर्किंग main जैसी है, उनको हम फंक्शन कहते हैं. They allow you to break down a program into smaller or manageable parts. Means what? That if one procedure is there, or if there is a program of 1000 lines, so if there is only one function which contains 1000 lines, then it is very tedious job to understand the program. So it is better to split up the program into different functions and then call these functions accordingly in your main function. Functions can be reused and called from different parts of the program. Suppose in my single program, if I want to execute certain procedure repetitively 10-20 times, then instead of writing all the code in your program 10 or 20 times, it is possible to bind this code by using a single function and just call that function number of times in your program. So it is called as functions. Now what are the different types of functions which are used in C++? So these functions are, one is library function and second one is user defined function. Library and user defined, उनके नाम ही बताते हैं कि वो क्या है. Library function means these functions are already present, and user defined means this function has to be created by user in his program. Library function means already है, और user defined function means मुझे अभी इस प्रोग्राम में user defined function, मेरा खुद का फंक्शन तैयार करना है. So what are library functions? These are also called as predefined functions which are used in C++, and the prototype of these functions are defined in header files of C++ which are included in your program. Example दो दिए हैं, one is sign, another one is strlen. I think all of you have gone through C programming concept. So sign is a function which is used to calculate mathematical sign value of a radians. And strlen function is used to count a number of characters which are present in a string. If I want to use sign function in my program, then it is necessary to include math.h file. If I am going to use strlen function in my program, then it is necessary to include string.h file. So what is meaning of this? That prototype means what? How to write strlen function, how many parameters you can pass to that function, which value will be returned by that function. ये सब जो चीजें हैं उस फंक्शन की कोडिंग ऑलरेडी लिखी गई है. So these are the predefined functions. It is not necessary to write any code to use these functions in my program. Second is user defined. Now as name indicates,
यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड बाय यूजर। यूजर मीन्स अगर मैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कर रहा हूं तो मेरे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहता हूं तो इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर अ फंक्शन। अब वो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, इसलिए दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो दो फंक्शन के टाइप है, वन इज लाइब्रेरी विच आर प्री डिफाइंड, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड विच हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय यूजर इन हिज प्रोग्राम। नाउ लाइब्रेरी फंक्शन के लिए कुछ सिंटैक्स लिखना जरूरी है, बिकॉज देर आर डिफरेंट सिंटैक्स फॉर डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। अगर मैं strlen लिखता हूं फंक्शन तो एक पैरामीटर जरूरी है जिसकी डेटा टाइप एरे ऑफ कैरेक्टर चाहिए, और strlen फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो हर लाइब्रेरी फंक्शन का अलग अलग सिंटैक्स है, और आपको अगर देखने हैं कौन से हेडर फाइल में कौन से लाइब्रेरी फंक्शन है, बेटर टू मूव योर कर्सर ऑन हेडर फाइल एंड प्रेस कंट्रोल F1 इन टर्बो C++ to get rid of all the functions or library functions which are present in that particular file। तो लाइब्रेरी फंक्शन तो ऑलरेडी है और हर एक का सिंटैक्स अलग है। मुझे जो मेरा फंक्शन लिखना है उसका सिंटैक्स जरूरी है। So what is syntax of user defined function? It is return type, then आपका फंक्शन का नाम, पैरामीटर। फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो आपके कीवर्ड में नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मुझे getch फंक्शन का नाम लिखना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज getch इज ऑलरेडी अ लाइब्रेरी फंक्शन विच इज यूज्ड इन C++। सो इट इज अ कीवर्ड। तो कीवर्ड जो कीवर्ड है ऑलरेडी उनका नाम आप लाइब्रेरी फंक्शन को नहीं दे सकते। कुछ अलग दो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है फैक्ट दो। यहां पे देखो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक ऐड है दूसरा भी ऐड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, यहां पे रिटर्न टाइप वॉइड है। तो जब मैं void लिखता हूं इट मीन्स दैट फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जहां से कॉल किया है वहां पे। वेरएज जब मैं इंटीजर ऐड लिखता हूं तो मैंने यहां पे रिटर्न लिखा है। तो इंटीजर ऐड लिखने का मतलब क्या है कि ऐड इज अ फंक्शन विच एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स, data type of these two parameters is integer and this function will return a value। उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। सो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स इफ एनी। ऐसे क्यों लिखा है यहां पे? क्योंकि फंक्शन आप विदाउट पैरामीटर भी लिख सकते हो। यहां पे मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं दोनों भी एग्जांपल में, लेकिन अगर मुझे खाली हेलो प्रिंट करना है तो मैं फंक्शन कैसे लिखूंगा? void print hello parenthesis open close, there is no parameter and in that function only one statement is present, that is cout hello। so you can pass the parameter, अगर नहीं किए हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉल करते वक्त अकॉर्डिंगली उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। So how to call a function now? अब दो टाइप है, एक फंक्शन विच रिटर्न्स अ वैल्यू और दूसरा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो पहले हमने एग्जांपल लिया है द फंक्शन विच विल रिटर्न अ वैल्यू। तो उसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन नेम पैरामीटर्स इफ एनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है c इज इक्वल टू एड ऑफ a कॉमा बी। c इज इक्वल टू एड ऑफ a कॉमा बी मैं किस फंक्शन के लिए लिख सकता हूं? इस फंक्शन के लिए, बिकॉज दिस फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अब ये जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहां पे आएगी? तो ये c वेरिएबल में आएगी। सो टू कॉल अ फंक्शन इन टर्बो C++, you can use the following syntax। कौन सा?
वेरिएबल लिखो इज इक्वल टू फंक्शन नेम पैरामीटर्स इफ एनी। अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त पैरामीटर दिए हैं तो यहाँ पे लिखो, डिक्लेयर करते वक्त नहीं दिए हैं तो यहाँ पे मत लिखो। लेकिन हर एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आपने जो वेरिएबल लिखा है। बट कीप इन माइंड दैट व्हाइल डिक्लेयरिंग दिस फंक्शन, data type or return type of the function should be same as data type of this variable। ये वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है c इज इक्वल टू एड ऑफ a कॉमा b। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की मीन्स c के डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। दिस इज रिगार्डिंग कॉलिंग अ फंक्शन विच विल रिटर्न अ वैल्यू। दूसरा है विच विल नॉट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे गलती से विच विल रिटर्न वैल्यू डबल आया है, तो विच विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे इजी है, इज इक्वल टू वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट फंक्शन नेम और पैरामीटर। डिस्प्ले वैल्यू नाम का फंक्शन लिया है मैंने यहाँ पे। पैरामीटर है क्या, तो यहाँ पे पैरामीटर मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। ये फंक्शन कुछ वैल्यू भी नहीं रिटर्न करता, तो उस फंक्शन में जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो कॉल करते वक्त भी दो टाइप है, एक जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसका कॉलिंग अलग से, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसका सिंटैक्स अलग से। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू पास अ पैरामीटर। पैरामीटर पास करते वक्त क्या होगा, तो दो टाइप के पैरामीटर है। जहां से पास करते हो दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर, और जिस फंक्शन में आप उस पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहे हो दैट फंक्शन और दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void add integer x। अब उसके अंदर फंक्शन की बॉडी में कुछ भी रहने दो, just keep in mind that there is one add function which will accept one parameter which will not return any value। तो ये जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसका नाम क्या है, x है। तो x जैसे ही आप डिफाइन करोगे तो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज रिजर्व्ड टू स्टोर x कॉल करते वक्त। और एग्जाम्पल में मैं कैसे कॉल करूंगा उसको, एड इन ब्रैकेट n, तो n के लिए अलग 2 बाइट होंगे। सो हियर जहां से कॉल कर रहे हो दिस n इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर, और आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, क्योंकि अगर मैंने इस तरह से फंक्शन को कॉल किया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फंक्शन नेम शुड बी ऐड, इट शुड एक्सेप्ट वन पैरामीटर, data type of that parameter should be integer, and that function will not return any value. After satisfying all these conditions, what will happen, value of n is now assigned to x। तो समझो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू अगर 10 है तो फंक्शन कॉल करने के बाद x की वैल्यू भी 10 होगी। फॉर्मल मीन्स टेम्पररी, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, n की है, और उसको मैंने टेम्पररीली प्रोसेसिंग के लिए x में डाल दिया है। That's why x is called as formal parameter and this n is called as actual parameter। So like this you can pass parameters to the functions। अब पैरामीटर पास करने में भी 2 टाइप है। One is either you can call the function by using actual values of a parameter, or you can call a function by passing address or by receiving the address। अब यहाँ पे देखो 2 दिया है, वन इज कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर नाम है, ये इजी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू क्या है 5 है, फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट है क्या है, रिटर्न नहीं करता है क्या, हाँ, एक पैरामीटर है क्या है, डेटा टाइप इंटीजर है क्या है। आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल दिस कंडीशंस वैल्यू ऑफ वैल्यू इज नाउ असाइन्ड टू नम एंड दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। करता कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो
कि वैल्यू की वैल्यू नम को जाएगी और नम प्लस प्लस होगा। इधर वैसा नहीं है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया है, लेकिन इधर लेते वक्त वो क्या ले रहा है, इंटीजर एम्परसेंड नम। एम्परसेंड नम मीन्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू it is accepting address of that value. So in the call by value method, the function receives and copy the value which is passed, and in call by reference method, the function receives a reference to the original value. अब दोनों में फर्क क्या है, देखो यहाँ पे नम है, यहाँ पे भी नम है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है। डिफरेंस कहाँ आ गया, या एम्परसेंड का। अब दोनों में डिफरेंस देखो कैसे होता है। यहाँ पे नम के लिए अलग है और यहाँ पे वैल्यू के लिए अलग है, मीन्स दो दो बाइट अलग है। यहाँ पे मैंने इंटीजर एम्परसेंड नम लिखा है, मीन्स वैल्यू का एड्रेस इधर जाएगा। अब आप जो भी चेंजेस नम में करोगे ऑटोमेटिकली वो सभी चेंजेस वैल्यू में भी होंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है मॉडिफिकेशन मेड टू द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यूज। यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी अफेक्ट नहीं होती, वेयर एज कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू डेफिनेटली अफेक्ट होगी, बिकॉज यू आर पासिंग एड्रेस इंस्टेड ऑफ वैल्यू। यहां पे मैं एड्रेस पास कर रहा हूं, वैल्यू पास नहीं कर रहा। देन रिटर्न कैसे हो गए वैल्यूज, तो रिटर्न करने के लिए भी सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने इससे पहले के एग्जांपल में लिया था मैंने। अब देखो यहाँ पे इंटीजर ऐड इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, ये फंक्शन क्या करेगा, जेड वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न जेड। अब ये जेड रिटर्न कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट रहेगा, सी इज इक्वल टू नहीं, वेरिएबल कौन सा भी रहने दो, सी इज इक्वल टू सपोज एड ऑफ ए कॉमा बी, कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन होगा। ये कॉल करते वक्त मैंने इस तरह से कॉल किया होगा, तो ये ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ए की वैल्यू एक्स को आएगी, बी की वैल्यू वाई को आएगी, जेड डिक्लेयर होगा, ये एक्स प्लस वाई होगा, और रिटर्न जेड मीन्स व्हाट, ये जो जेड की वैल्यू है वो आएगी अब सी में। सी इज इक्वल टू एड ऑफ ए कॉमा बी, इसका मीनिंग क्या होता है कि द वैल्यू विच इज रिटर्न बाय एड फंक्शन इज नाउ असाइन्ड टू वेरिएबल सी। तो कुछ इस तरह से फंक्शन को वैल्यू पास कैसे करनी है और फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न कैसे करनी है। फंक्शंस इन टर्बो C++ कैन रिटर्न वैल्यूज बैक टू द कॉलिंग कोड। Returning a value from a function allows you to compute a result and use it in other parts of the program. अगर मैंने मेन से कॉल किया है तो मेन में अब आप सी को यूज करके आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हो। कैलकुलेट कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। The return type of a function in Turbo C++ specifies the data type of the value that the function will return. फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहाँ पे लिखे वाला होता है, यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन के सिंटैक्स में भी आपने देखा कि रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं हम। सो यू कैन रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फंक्शन बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। सो इट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। एक्चुअली ये थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन जब मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा तब आपको बताऊंगा वो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो में जितने भी प्रोग्राम लिए हैं वो प्रोग्राम का लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो प्रोग्राम कॉपी कर सकते हो। नोट्स भी डालूंगा धीरे धीरे, हर एक वीडियो के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो फंक्शन इन टर्बो C++ अलाउज यू टू ब्रेक डाउन योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड रीयूजेबल पार्ट्स। Function can be defined with parameters to accept values passed from the calling code. Parameters can be passed by a value or by the reference. Pass by a value create a copy of the value, while pass by reference work with the original value. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि pass by call by reference में जो ओरिजिनल वैल्यू पास हो रही है वो चेंज होगी, कॉल बाय वैल्यू में नहीं होगी।
Returning values from function in Turbo C++ allows you to compute result and use them in other parts of your program. The return type specifies the data type of the value returned by the function. The return statement is used to send the value back to the calling code, and the return value can be assigned to a variable for further use. So it is all about functions in C++. Thank you very much. If you like the video, then kindly share the video with your friends and subscribe the channel. Thank you very much.